Hello everyone, good morning. A very happy new year to all of you. Thank you so much for joining in, and I will just invite our guest Shabani. Sent a request to Shabani. I'm just waiting for her to join. Hi Shabani. I've sent you a yeah, great. Shabani has joined us. Yeah, Hey, you hi. look so lovely. Thank you. Thank you so much. Am Gorgeous. I audible? You are audible, you are visible, and you're looking ravishing. And it's Thank you. so good. And thank you for uh, getting ready to come in 2025, Shrabani. Thank you so Yeah, thank you. And I wish you a very, very happy new year to you and all our viewers who will be watching this live or much. recorded. Thank you, Shrabani. And because of some technical glitch, I couldn't do this live from my new page because Okay. Instagram says that 30 days old hona chahiye wo account. That is why I'm doing in this. And thank you so much for understanding and doing this last minute changes, Shrabani. Means a lot. Yeah, Says कोई a lot, बात नहीं. says a lot about you. Thank you. Thank you. So, Shrabani, Yeah. how was the New Year's? How did you celebrate? You did some, Yeah, this beginning is really wonderful. Actually, I enjoyed a lot. I went to my parents' house from last Christmas day, so I stayed there for 5 days and just came back yesterday only. So it was a really wonderful ending of last year and beginning of this new year. Thank you so much. absolutely. You're most welcome. And let me quickly introduce you, Shrabani, now to our viewers and get it started. So, hello everyone. Thank you, past viewers joined. Thank you so much for joining and being supportive on this Instagram live means a lot. And welcome Shabani to Chainmaker Supermom Stories, and everybody who is listening, welcome all. And today I'm thrilled to introduce you to an incredibly inspiring supermom, Shabani Dalal. Now, Shabani is mother to two wonderful boys, an author, a cancer survivor, and a sociologist by education and profession. With over 7 years of experience in the government social work sector, she is now the founder of the Evolved Soul Hub community and a life coach dedicated to helping women master their emotional excellence of resilience, transformation, and empowerment. So, Shabani, hats off to you. I can see that it's not been easy, but every time you have bounced back, and no other better way to start this new year with you, Shabani. I would say, and I really admire you from my heart, and the courage. And you've been an inspiration to me as well as so many of us who know you. And can you please tell now about yourself? Yeah. Thank you so much, Sarita, for so much of appreciation and praise you have given to me. Actually, I have just tried to deal with every situation in my life, whatever struggles or whatever situations has been thrown to me. I just tried to deal with it. That's it. Otherwise, I'll say every time there is a new challenge, and every time you deal with that challenge, you come out a more stronger, courageous, and stable person than your earlier person. So that's what I can say. Yeah, Shrabani, I think you are the role model. Your calm talk and your presence, I think you're over challenging the challenge itself, the fear itself. Bolega, oh, Shrabani's smile is so beautiful. I won't stay longer. Yeah. So welcome, Bharti.
Thank you for joining us on the morning. Thank you so much, Bhargavi. Hi, So, Bhargavi. Welcome. yeah, one question, I have your permission. Your voice is little bit not Can audible. you hear me now, Yes, Shravani? Better? yes. So, I Yeah. was asking you, may I start with the questions now? Sure. You can Great. start. So let's begin from the beginning. Can you provide a brief overview of your life and what motivated Shabani that you pursuing your current work? So, as you know already, and you have introduced me also, that I am a sociologist by my education and profession. Earlier, I was working under Tribal Development Organization of Odisha. So, post marriage, I had to leave my job, and uh, there was a phase that I thought that I am feeling monotonous. Though I Hmm. thought I'll be giving time to my family and I'll be enjoying my family life, but still, I felt that monotony inside me. Hmm. And then, with time, uh, the disease of cancer came out, and every time I found that if I am not dealing it properly Hmm. emotionally, because every phase of change gives you a emotional uh, storm that you Hmm. have to deal. So that is the thing I found, that I'm facing that challenge, and I thought that most of us usually face that kind of challenge Hmm. in our life. Hmm. Hmm. That's true. Maybe we are working, maybe we are housewives, or any kind of changes by motherhood, by dealing with a new family, new work environment, new society. Every time we are facing some kind of emotions, and if we are not dealing it properly, it not only hampers our physical life, it hampers our mental life and also emotional and spiritual life. So in order to balance your life properly, you need to deal with that emotional struggles, and you need to know how to balance all this. And that's why my passion is now to make everyone that much of emotionally strong that they can enjoy actually what life is, to enjoy, not to struggle, and just to enjoy life. Yeah. So beautifully put, Shabani, and that is the need of hour. I think not of the hour. I would say yes. Going forward, the like to deal with your emotions, like actually looking at your emotion, recognizing what it is, and then dealing with it and going ahead. Yes. Right now, the current scenario is even if we are dealing with emotions, we hide behind it, get busy Yeah. with some, and it shows up somewhere, like you said, it affects our all the other areas of our life. That is so rightly put, Shabani. And Yeah. coming back to your title, which is saying emotional mastery. So what does emotional mastery mean to you, Shabani, and why do you believe it is so essential in our lives today? So for me, emotional mastery is Huh. how quickly you are coming back to your normal state of mind. Hmm. Earlier, what was happening, that if I am feeling any kind of trauma or regret or guilt or any kind of emotion, I'll be wasting my 1 day, Hmm. 2 days, sometimes a week, or over a Hmm. month. Hmm. तो क्या वो मेरे लाइफ को सर्व कर रहा है? अगर मैं वही इमोशंस को बार बार अपने माइंड में प्ले किए जा रही हूँ और वो सैडनेस के साथ फेस कर रही हूँ, तो वो मेरे लाइफ में कुछ भी सर्व नहीं कर रहा है. तो आप कितनी जल्दी वो नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हो, वो ही होता है इमोशनल मास्टरी. वो मेरे लिए इमोशनल मास्टरी. Super. What I'm trying to understand is, I've just repeat, am I correct? So, facing the या. emotions and हम्म. recognizing it and dealing with it, rather than आप जब भी बोल रही हो used to waste 1-2 days. Can you please या. elaborate that? What do you mean हाँ, by? मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हूँ. सपोज आप वर्क प्लेस में हो, आपको कुछ ज्यादा वर्क बर्डन आ गया और इधर घर पे भी आपको Hmm. ध्यान देना है, तो आप स्ट्रेस में Hmm. आ जाओगे कि Hmm. मुझे Hmm. कैसे डील करना है.
या फिर अगर आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल में थोड़ा सा कम हो गया या कुछ हो गया, फिर आपको लगेगा कि अरे मैं तो घर पे भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ और ऊपर से देखो मेरा अप्रेजल भी लो हो गया, तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस पे रहते हो। और हो सकता है कि जब आपको वो प्रमोशन ना मिले या फिर वो अप्रेजल ना मिले, आप उसी चिंता में आपका हो सकता है और एक महीना भी निकल जाए, और उस स्ट्रेस के वजह से ना आप आगे से भी अपना वर्क स्पेस को वो एक्चुअली जितना देना चाहते हो आप उतना दे पा रहे हो, ना अपने घर पे भी दे पा रहे हो, तो वो हो जाता है एक सिचुएशन। अगर कोई हाउस वाइफ है तो उनको भी बहुत ज्यादा गिल्ट होता है। जैसे आजकल हम लोग सारे पढ़े लिखे हैं ऑलमोस्ट, ऐसा नहीं है कि हमारी मम्मी या फिर हमारी नानी दादी जैसे रहते थे वैसा हम लोग नहीं रह सकते। हमें कभी कभी गिल्ट आ जाता है कि अरे मैं तो इतनी अच्छी कर रही थी, अभी देखो मेरा हाउस वाइफ जैसा हाल हो गया। तो वो एक चीज है। और नेक्स्ट मैंने देखा जब मुझे वो कैंसर का डायग्नोसिस हुआ, मुझे वो एक्सेप्टेंस करने में ही बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कैसे हो गया, मुझे क्यों हुआ, व्हाई गॉड, व्हाई मी। तो वो जो क्राइंग, वो जो सैडनेस, उसको आप जो भी आपके साथ होता है, कुछ भी सिचुएशन में चेंजेस आता है, वो एक्चुअली हमें स्ट्रेंथ देने के लिए आता है ना। और बहुत सारे इमोशंस हमारे लाइफ में होते हैं, चाहे सैडनेस हो, एंगर हो, गिल्ट हो, रिग्रेट हो, ऐसे मैं बहुत सारे नाम ले सकती हूँ। तो वो सारे जो चीजें होती हैं, वो चीजों को बस हमें पहचानना है, क्यों वो हमारे लाइफ में आए हैं, और उसको मैं कैसे डील करूं कि मेरा लाइफ हमेशा बैलेंस्ड है। मैं अपने इमोशंस को मास्टर करूं, ना कि इमोशंस मेरे ऊपर मास्टर बन के बैठ जाए। Wow, beautiful, Shrabani. And even I have noticed in my life, like whenever there is a change, I pause. यस मुझे वो लगता है "No, अभी change हो गया है, how will I manage? And all that stress goes on. Like, और फैमिली रिलेटेड थोड़ा वो ना रूटीन से जब भी चेंज होता है दैट आई स्ट्रेस हाँ एंड यू हैव ब्यूटीफुली पुट कि कैसे वो चेंज तो होता रहेगा द ओनली थिंग दैट इज कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड इज चेंज सो द मोमेंट वी यस रिकॉग्नाइज दैट चेंज तो होता रहेगा बट व्हाट those give us tools and techniques how to manage that change and how to live your life joyfully, right, Shrabani? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। Excellent. Uh, uh, you both happy new year. Voice is breaking, Sarita side. Yeah. Okay, Bhargavi saying love you both. Happy New Year. Happy New Year to you too, Bhargavi. Love you. More power to you. And then the welcome, the bookworm 70. Thank you for joining. Vasanti, Harish, thank you for joining. And oh, oh, my voice is breaking. It's in. Now is it better? Shabani, can you hear me Some, now? some, sometimes it is not audible and sometimes it is audible. Okay, maybe. Okay, okay. I'll be louder. Okay. Yes. The next question, Shabani. Can you, if there are people who are watching us, can you tell the audience, especially in emotionally Please repeat your question. so can you tell our audience how Yeah. can we handle our emotions, okay, especially in emotionally charged situations, Shabani? How do we handle So, yeah. So, in any situation, if you are feeling emotionally high, there is a quote I can say: whenever you are emotionally high, your intelligence goes down. Okay, okay, yeah. So, if you are emotionally up, your intelligence will go down. Mm. So, in that way, you need to learn how to respond to that situation. Earlier, what was happening कि हम कुछ भी हुआ, हम उसमें कैसे रिएक्ट कर लेते हैं। कुछ भी सिचुएशन आया, अगर एंगर आ गया, हम इमीडिएटली एंगर में बस्ट हो जाएंगे, कुछ भी बोल देंगे। फिर बाद में क्या होता है, हमें गिल्ट हो जाता है, अरे अरे मैंने कैसे ऐसे बात बोल दिया। फिर हो सकता है कि सिचुएशन में आप चाहे सही हो, पर आप जाके दूसरे को माफी मांग रहे, फिर आप बाद में सोचते हो क्या हो रहा है ये मेरे साथ।
मैं सही हूँ, मेरे साथ गलत हुआ, पर अभी मुझे ही जाके सॉरी बोलना पड़ रहा है। Right. Right. तो आपको हर सिचुएशन में आप जो हमेशा इमीडिएटली हम रिएक्ट कर लेते हैं वो बाय डिफॉल्ट होता है। पर अभी हम अगर चाहते हैं कि इमोशंस हमारे ऊपर मास्टर ना बने, हम इमोशंस के ऊपर मास्टर बने, तो हमें सीखना होगा कि हाउ टू रेस्पॉन्ड, नॉट टू रिएक्ट immediately. And that is the only way I can say we can handle all our emotions if we just keep little bit of calm of ourselves, and we'll see how we can respond the best way. Right. So the key word I'm taking is whenever you're dealing with emotions, rather than reacting, pause and respond to the situation, right, Shabani? Yes, correct. Thank you. Okay. So now, Shabani, let's go deeper into this. How to react when expectations is not met, or how to respond, rather, I would use the word. Yeah. Okay. So whenever your expectations are not met, suppose I am telling you, as a mother, I am cooking something for my children. But without any kind of appreciation, if my children or my husband, they are eating out, but not giving any word of appreciation कि हाँ आपने बहुत काम किया और आपने दिन भर इतना मेहनत किया, खाना अच्छा बना है, अगर कुछ भी नहीं बोलेंगे then I'll be thinking कि ये क्या हो रहा है, मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, सबके अकॉर्डिंग अलग अलग खाना बना रही हूँ, क्या मैं इतना डिजर्व नहीं करती कि वो मुझे थैंक यू भी बोले कि हाँ मम्मी आपने इतना अच्छा खाना बनाया, आपने मेहनत किया, या फिर हस्बैंड भी बोले कि हाँ आपने अच्छा से बना लिया, तो क्या मैं इतना डिजर्व नहीं करती? तो वहां पे आ जाता है एक्सपेक्टेशंस। आपने वही पूछा ना कि अगर एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होते हैं तो हम क्या करेंगे? तो एक्सपेक्टेशन तो रहेगा, अगर आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा देन यू विल बी बिहेविंग लाइक नेबर्स। आपको नेबर्स के साथ कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है, वो करे ना करे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको एक्सपेक्टेशन उन्हीं लोगों से रहता है जो लोग आपके नियर एंड डियर से, और जिनके लिए आप बहुत कुछ करते हो और आप एक्सपेक्ट भी रिटर्न में करते हो। अगर आप कुछ करोगे तो आप एक्सपेक्टेशन भी डेफिनेटली करोगे। वहां पे रोल आ जाता है हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग योर नीड टू अदर्स। तो एक्चुअली वहां पे कम्युनिकेशन का रोल बहुत ज्यादा होता है। आपको उनको बताना होगा, ऐसा नहीं होगा कि आप वैसे के अंगर में बस्ट करो कि मैं तो इतना खाना बनाया, मैंने इतना किया तुम लोगों के लिए, तुम लोग किसी काम के नहीं हो, कुछ भी चीज नहीं समझते हो। ऐसा ना करके हम ऐसा पूछ सकते हैं क्या कि खाना कैसा बना है, अगर मैं इतना टाइम देके बना रही हूँ और अगर आपको अच्छा लग रहा है खाना तो यू शुड टेल मी थैंक यू कि आपने इतना मेहनत किया। और ये एवरी सिचुएशन में एक्चुअली में काम में आएगा अगर आप सबको ऐसा ट्रेन करते हो कि हाउ टू बिहेव विथ यू, हाउ टू actually appreciate you, or what are the expectation, what you want from them, how to communicate with you. Yes. So communication is important, right? Correct. Like ऐसे नहीं कि people can't read our mind. Yeah. Before a beautiful example, what you have given is about as simple as cooking food. When you cook food and your food but नहीं है. But yes, obviously what we is to do is like they don't have any that I've spent and naraz रहना है, like you know they not even appreciate it, but you're communicate, ask it is as simple as that, and then बिल्कुल। yeah. और ये हम कभी नहीं करते हैं ना, हम लोग हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा समझ जाए, तो वही वह कैसे होगा? अगर नहीं मिल रहा है तो यू नीड टू कम्युनिकेट दैट। और ये घर पे भी हो या वर्क स्पेस में हो, आपके फ्रेंडशिप में हो, कहीं पे भी, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग जस्ट यू communicate that, yes I am expecting this. Right, that is so again your sound is not audible, sir. Oh, now is it audible? Yeah. I'm sorry about this, Shabani. I don't know why it's happening today, the sound. No, it's okay. Internet is not in our hand. I think the internet also is in a party mode today, lazy mood.
coming back to our podcast. So negative emotions can often make us overwhelming, right? Like for Hmm. I was overwhelmed at मेरा जब our Insta line, I couldn't start in my new page because then I googled and I was wondering why it was not starting. So Instagram बोला कि 30 days old होना चाहिए account to Yeah. start live. So that is why. So I was overwhelmed. अभी क्या करे? Like I've given a word and why it's not happening. And so when negative emotions can often make us feel overwhelmed, right? Um, and how to manage them effectively, Shabani? So whenever we are facing any kind of negative emotions, as you told me right now that your Instagram account is only 30 days old, but you had an account, Yes. right? That was so much of followers and everything was your content, everything was there. But that account got hacked. It really makes us upset and we think अब क्या करें, why me, क्यों मेरे साथ होता है, इतने लोग तो अकाउंट चला रहे हैं। तो वैसे ही सेम सिचुएशन में भी मुझे भी लग रहा था कि why me, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो इतना कॉन्शियस हूँ। तो ऐसा हो जाता है। So any kind of negative emotion, I can say there is a 3-step process we can deal with it. Either you accept it, confront it, or remove it. So Wow. let me explain all those 3 Yes. processes. Yes. If any situation is not in your hand to control it, और आप उसको रिमूव भी नहीं कर सकते, वो चाहे कोई पर्सन है, कोई सिचुएशन है, कोई और कुछ भी रीजन है जिसको आप रिमूव भी नहीं कर सकते हो और आपको आपके हाथ में कोई कंट्रोल भी नहीं है उसके साथ डील करने का, तो व्हाट यू कैन डू, आप उसको एक्सेप्ट करो। जैसे मैंने अपने डिजीज को एक्सेप्ट किया, जैसे आपने अपने इंस्टाग्राम हैकिंग को एक्सेप्ट किया, है ना। नेक्स्ट है कन्फ्रंट। अगर कोई पर्सन आपको ज्यादा ही अनोइंग सिचुएशन दे रहा है, ज्यादा ही ट्रिगर कर रहा है, तो और आपके हाथ में वो कंट्रोल है कि आप उसको पूछ सकते हो व्हाई यू आर डूइंग लाइक दिस, व्हाई यू आर बिहेविंग लाइक दिस, देन कन्फ्रंट इट एंड कम्युनिकेट इट। या और अगर आफ्टर कन्फ्रंटिंग ऑल्सो you are unable and that is something you cannot compromise, then if possible then remove that person, place or situation, whatever it is. You just make a distance from that person and remove that person from your life if it is possible. So this is the 3-way process. And again in confronting there is also a beautiful technique that is called sandwich technique. So so whatever you are trying to confront, you need to remind them first that they are beautiful person, they always behave kindly, they are very nice, and then you Shabani, can you give an example of a sandwich technique? Like yes definitely I can give that. अगर आपका कोई फ्रेंड है जो आपको, हो सकता है हम लोग लाइफ में बहुत चेंज होते हैं ना, और कोई कोई जेलस फील कर लेते हैं, उनको लगता है कि वो आपके साथ और मैच नहीं हो सकते, तो वो आपको टॉन्ट मारने लगते हैं कि हाँ ज्यादा दिखावा कर रही हो, ये क्या, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब किताबी बातें हैं। तो हम उनको बस इतना ही बोल सकते हैं कि आप मेरे अच्छे दोस्त हो, मैं आपको समझती हूँ, आपने इतने साल मेरे साथ अच्छे से समझा, पर अभी आप जो बोल रहे हो ये अच्छा नहीं बोल रहे हो। अगर हो सकता है आपको समझ में नहीं है, आपने इसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस नहीं किया है, पर ये सारी चीजें मेरे लाइफ में काम में आया, राइट। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि आप आगे से ये सब बातों को समझोगे। अगर आपके लाइफ में कुछ काम आता है सही, अगर नहीं आता है देन ऑल्सो इट इज वर्किंग ऑन माई लाइफ, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एज अ फ्रेंड ऑफ माइन। ये हो गया फ्रेंड की बात है। और अगर हो गया बच्चों की बात है, सपोज बच्चे कभी कभी घर गंदा कर लेते हैं, तो मैं उनको समझाने का कोशिश करती हूँ कि आप दोनों बहुत अच्छे बच्चे हो, आप इतने साफ सफाया करते हो, मम्मी के जब तबीयत खराब हुआ था आपने मम्मी को कितना हेल्प किया था, अभी आप जो इतना गंदा करके रख लेते हो ना, मम्मी को तकलीफ होती है, मम्मी को बार बार सफाई करना पड़ता है, तो क्या आप ऐसा कर सकते हो कि साफ करो, और अगर आप आज ये रूम साफ कर लोगे तो हो सकता है हम इवनिंग में कहीं बाहर घूमने जाएंगे।
तो इसमें क्या होता है, आपको पहले अच्छा बोलना होता है, फिर बीच में आपको फीलिंग में आपका जो भी बोलना हो उसका डाल देते हो, फिर ऊपर से फिर से आपको अच्छा थोड़ा सा बोल के उसको पैचअप कर लेते हो। तो इससे क्या होता है, दूसरा बंदा को आप सेमफुल नहीं फील कराते, Yes. And और आपको जो बोलना है वो आप समझा देते हो। true. And it lands also so well. Because अभी आपने बताया सैंडविच टेक्निक में जब भी डालते हैं, so when you give the example of the children of your children, तो मैं सोच रही थी दो टाइप से हम लोग बोल सकते हैं, आप तो डांट के बोल, हाँ, वो तो बैठेगा ही नहीं, ऐसे वो बाउंस होके निकलेगा। बट व्हेन यू बच्चों के साथ डांटना काम नहीं आता है। बच्चों के साथ एंड ऑल्सो रिलेटिव्स, या किसी के साथ भी अगर आप गुस्से से बोले या एंगर होके बोले या तो चुपचाप बैठे, कुछ भी नहीं होने वाला है। बट व्हेन यू confronting and using as a technique, that sandwich technique, I can see that at least listening होगा और उस पर कुछ एक्शन लिया जाएगा, एंड इट विल लैंड अच्छी तरह से। ठीक है, दिस पर्सन व्हाट ही इज टेलिंग, एंड इट इज अप टू देम whether they do it or no, but at least I feel that relationship is maintained in this using sandwich technique. And या also इंस्टेड ऑफ कुछ एक्शन लिया जाता है, वो जो आप रिक्वेस्ट करते हो या कन्फ्रंटेशन करते हो, या डेफिनेटली। और हमारा मोटो है कि हम रिलेशनशिप तो ब्रेक करना नहीं चाहते हैं ना, हम बस चाहते हैं कि जहाँ पे हमें डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है वो डेवलप हो जाए और दूसरा बंदा हमें समझे, तो बस हो गया। अगर उतना होता है तो अच्छा है। Full Shrabani, thank you so much for sharing with our audience this. I will just see who all join किया है वापस. Suchitra has joined. Thank you for joining, Suchitra. Bhargavi is telling there is some background noise, intermittent. Okay, Bhargavi. Thank you for pointing out. And welcome, Coach Kamar. Hi, Shrabani and Sarita dear. Thank you, Coach Kamar, for joining. Um, and Saloni is also there. Saloni. Oh, welcome, Saloni. And yeah, welcome, Saloni Agarwal. And thank you so much for joining and encouraging us. So let's go on ahead, Shrabani. Coming with the next question is gussa, about anger. That's Yeah. a common challenge, right, for many, I would say. Yes. Because of whatever reasons, Abika lifestyle and demands and so many roles, especially with the mothers, we play so many roles. So gussa is a natural feeling, emotion that comes. Can you share 3-step process for managing anger? Yeah, I think I have already elaborated all this. That is actually, whenever you are feeling anger, it is actually a situation where you are not having that control over the other person or that situation. That's why you are feeling that anger inside you. So, to deal with that anger, these are the 3 processes: that accept, confront, and release. Okay. Yeah, these are the 3 processes. But you need to understand what is that situation, what is that annoying situation or person, why that is giving you that trigger. Yeah. So, excellent. So that same 3 process, you can choose one of this and use you're saying that for anger also, right? anger. Okay. Yeah, you asked me whatever is the negative situation, how we can deal that. So in that we Right. actually discussed about that. Yes. And yes, Suchitra shares that Shrabani, lovely technique, sandwich technique. Thank you for that. Thank you so much for Thank you. Suchitra, means a lot. And Coach Kamar is saying both are rock stars. Oh, so are you. So much. And coming back to our next question, how to deal with bitterness and resentfulness, Shabani? Usually हम लोग express नहीं करते as mothers and patriarchal society, the way we have been brought up. अगर कोई कुछ बोला तो even if we are feeling hurt and अच्छा नहीं लग रहा है तो just अभी भी ऐसे है, most of the times we keep quiet. And how to deal with that bitterness, resentfulness, वो सब. बिटरनेस एंड रिजनफुलनेस वहां पे आता है जहां पे आप बहुत कुछ, आपको लग रहा है कि यू आर गिविंग सो मच बट यू आर नॉट रिसीविंग इन दैट प्रोपोर्शन। वहां पे
आ जाता है बिटरनेस। और मोस्टली ये वैसे ही सिचुएशन में आता है जहां पे आप ज्यादा ना नहीं कह पाते, यू आर अनेबल टू से नो। आपको ऑफिस में ज्यादा वर्कलोड आ गया, यू आर अनेबल टू से नो। आपको घर में ज्यादा काम या ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल रहा है, यू आर अनेबल टू से नो। तो वहां पे आपको आ जाता है बिटरनेस एंड रिजनफुलनेस। और वैसे वाले सिचुएशन में हमें एक्चुअली वो बाउंड्री सेटिंग, थोड़ा सा हमारा वॉरियर प्रिंसेस वाला काली वाला रूप वहां पे काम आता है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा सीखना होगा। इवन इफ यू आर लविंग द अदर पर्सन, इवन इफ यू आर लविंग all your family members, but still you as a person also need your space, and your liking and disliking also matters. तो आपको वहां पे थोड़ा सा सीखना होगा हाउ टू से नो, और थोड़ा सा उनको डिसअपॉइंटमेंट भी करना होगा। True, setting boundaries is very important. And आपने बोला, I will get बीच बीच में साउंड कट हो रहा है। yeah, I think there's आप फिर से बोलो। हाँ, आपने क्या बोला, मुझे कुछ भी नहीं सुना। boundaries is very important. Yes, that definitely. And when you mentioned about Kali, warrior princess, I'll come back to that later on. We'll just yes, pack it aside. Now, one of the major emotions, Shrabani, for parents, especially for mothers, hota hai guilt. It is a very difficult emotion to overcome. I've also seen with my clients, because mother is handling, especially अभी का generation का, बाहर का, अंदर का, सब, she's multiple roles she's playing. पर guilt जो भी आता है ना, she feels so small. So can you give us some practical advice? How do you transform guilt into, how do you catch that guilt and how do you come out of it? हाँ, ये बहुत बड़ी बात कही आपने, जो बोले ना मदर्स गिल्ट तो बहुत ज्यादा होता है। और हमारे जनरेशन में मदर्स गिल्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमने क्या हुआ, हमारे मम्मी से हमने पूरा अटेंशन लिया। अभी हमारे जनरेशन में हम चाहते हैं कि हम बाहर का भी, कुछ भी वर्किंग वुमेन जो भी है वो बाहर का भी काम करना चाहते हैं और घर पे भी पूरा अटेंशन देना चाहते हैं, क्योंकि हमें तो अपने मदर से वैसा ही अटेंशन मिला और हमने वही सीख ली कि हमें बच्चों को फुल अटेंशन देना है। कभी भी आपका अगर इधर उधर थोड़ा सा हो गया, यू विल बी फीलिंग गिल्टी। ओ हो मेरे अपने बच्चे इतने टाइम अकेले रह गए, पता नहीं खाना खाया नहीं खाया, क्या कर रहे हैं, और मुझे इधर ध्यान देना पड़ रहा है। तो आप अगर ऑफिस में रहोगे, घर के बारे में सोचोगे, घर में अगर रह गए, मैं ऑफिस नहीं जा पाई और ऐसा हो गया, मेरा लाइफ तो बर्बाद है, आप ऐसा तो ये गिल्ट बहुत ज्यादा आता है और बच्चे बहुत जल्दी उसको समझ लेते हैं, पकड़ लेते हैं एकदम से। अगर उन्होंने देखा कि आप अपने काम में बिजी रह गए 2-3 घंटे, तो वो आपको, मम्मी आप तो इतने देर से काम कर रहे हो, मैं थोड़ा सा मोबाइल देख लूं। अच्छी बात है। you're right. हाँ, थोड़ा सा टीवी देख लें, आज ना हम थोड़ा बाहर से खाना मंगा लें, हमें चॉकलेट मिलेगा। तो आप उस टाइम पे आपको समझ में भी नहीं आएगा, यू विल सी इन द नेक्स्ट सिचुएशन, यू विल बी एग्रीइंग विद देयर कंडीशंस। और फिर बाद में आपको समझ में आता है, अरे मैंने ही तो खुद उनको रेस्ट्रिक्ट किया था कि मोबाइल इतना टाइम मत देखना, और आज क्योंकि मैं काम में बिजी थी, वो लोग पता नहीं 2-3 घंटे से मोबाइल में ही है। तो एक्चुअली आपको वहां पे लर्न करना है कि आपको वो गिल्ट, आपके जो गिल्ट है वो दूसरे इमीडिएटली सेंस कर लेते हैं। तो आपको वो गिल्ट जो भी आ रहा है उसको आपको डील करना है, उसका पावर आपको दूसरों के हाथ में नहीं देना है कि वो आपको मैनिपुलेट कर ले। ये तो मैंने बच्चों का एग्जाम्पल दे दिया, लेकिन वो सिचुएशन कहीं पे भी आ सकता है, आपके वर्किंग स्पेस में या फिर फैमिली में, कहीं पे भी आपको बहुत सारा फेस करना पड़ सकता है। और हम वुमेन को बहुत ज्यादा गिल्ट होता है, जैसे अगर मैं बोलूंगी कि मेरा ही काम है मेरे बच्चों को देखना, मेरा ही काम है मेरा घर को देखना, मेरा ही काम है सब घर पे अगर कोई भी गेस्ट आते हैं उनको हैंडल करना। तो ये जो गिल्ट सारे हैं, ये मेरे अपब्रिंगिंग से आते हैं। सोसाइटी ने हमें सिखाया कि हमारे एज अ वुमन क्या क्या रोल होना चाहिए। तो जस्ट कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, कि अगर मुझे पता है कि कहीं पे मैंने कुछ कमी कर दिया,
मुझे बच्चों को आज इतना अटेंशन देना था पर मैं नहीं दे पाई, तो वहां पे मैं क्या करूंगी, मैं बोलूंगी बच्चों को कि अच्छा ठीक है, आज मुझे इतना टाइम देना था पर क्योंकि मेरा काम है इसीलिए मैं इसमें बिजी हूँ। आप लोग अगर सही से अपना होमवर्क या फिर स्कूल के टास्क जो भी है, पढ़ाई वगैरह सब कुछ कर लोगे, तो हम लोग ना बाहर जाएंगे, थोड़ा पार्क में घूम के आ जाएंगे, या फिर आपको अगर कुछ अच्छा लगता है वीडियो गेम साथ में खेल लेंगे, कोई कार्टून प्रोग्राम हम साथ में देख लेंगे। ऐसा अगर आप पहले से ही माइंड में सेट कर लेते हो, इफ यू आर डूइंग समथिंग एंड इफ यू आर नेग्लेक्टिंग समथिंग, बिकॉज दैट इज द बैलेंस ऑफ लाइफ। अगर आप किसी को प्रायोरिटी देते हो कि कोई चीज तो नेग्लेक्ट होगा, तो वो नेग्लेक्ट जो भी आप कर रहे हो, अगर आपको वो समझ है कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा गिल्ट आ रहा है, मैंने शायद थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाई, वहां पे आप खुद ही पहले से तय कर लो कि आप उसका कैसे भरपाई करोगे। got it, Shabani. So well you have put. आपने कितनी अच्छी तरह से समझा है ये. And what golden nugget, if parents, mothers who are watching, you have to take back कि guilt में what Shabani has shared is कि she has guilt जब भी हम लोग को recognize करते हैं हम लोग कि अभी ये, and how manipulative children are also there or anybody else, they catch our इसको Yes. रहा है, now we can अपना कुछ भी. But as a mother, as a parent, what we can do is find that okay, now I'm feeling guilty, hold on for a minute and take control of that situation. Don't give the power to the to your children or your whoever is in your workplace जो भी है. So take and learn to deal with it, right? Don't give. हाँ, कभी कभी ऐसा होता है ना, हम फ्रेंड्स के साथ भी बात नहीं कर पाते हैं, पेरेंट्स के साथ भी थोड़ा सा अगर हम कुछ काम में उलझ गए, फिर हमें गिल्ट आ जाता है, या फिर वो दूसरे भी ब्लेम करने लगते हैं कि तुम हमें याद नहीं करती, वी आर नॉट सो मच इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो आपको उस सारे चीज जो आपको लग रहा है, ये दीज आर ऑल गोज अंडर गुड गिल्ट, कि आप उसमें कुछ आप रिप्लेसमेंट कर सकते हो। आपको पता है कि हाँ, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर लिया, देन हाउ आई कैन replace all those guilt with contributing somehow. Superb. Thank you. और And yeah, I can see. और बाकी और एक है सूट गिल्ट, जो हम खुद के ऊपर लगाते हैं, जो मैं बोल रही थी कि सोसाइटी ने हमें बहुत कुछ बताया है कि मुझे एक अच्छा मदर बनना है, मुझे एक अच्छा डॉटर इन लॉ बन के दिखाना है, मुझे पढ़ाई में अव्वल करना है, मुझे वर्किंग स्पेस में अच्छा करना है। ये सारे हो जाते हैं सूट गिल्ट कि मुझे आई शुड डू दैट, आई शुड डू दैट। तो ये सारे जो गिल्ट हैं, इसमें मुझे लगता है कि हमें खुद को कैसे डील करना है, ये हमें समझना होगा, क्योंकि सोसाइटी के पर्सपेक्टिव हमेशा चेंज होता है, और कोई भी चीज ऐसा आप नहीं बोल सकते कि दिस इज द परफेक्ट वे ऑफ लिविंग। Yes. Agree with you, Shrabani, totally. And such golden nuggets you're giving as a mother to other mothers, and I feel it is a very powerful things that you're sharing. And welcome Sid Shetty 2011 2211, and welcome Suchi Bits. Thank you for joining and encouraging, cheering us on the 1st January 2025. And Okay, Shabani, now can you please highlight and how should we respond when others behave in ways that upset us और हम लोग को बुरा लगता है, तभी हम लोग क्या behave करना चाहिए? Like, what should be our response? या अगर आपको कोई दूसरे का बात ट्रिगर कर रहा है, ठीक है, तो आप तो पहला तो है आप क्लियरली कम्युनिकेट करो, और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगी, आपको खुद के ऊपर थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना होगा कि कौन सा वो बात या फिर कौन सा वो सिचुएशन है जो आपको ट्रिगर कर रहा है। कहीं ये जो ट्रिगर कर रहा है वो आपका पैटर्न तो नहीं है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि हम लोग पैटर्न में जीते हैं। इफ आई बी फीलिंग कि ये वाला सिचुएशन मुझे ज्यादा ट्रिगर कर रहा है, ठीक है, और मैं वो सिचुएशन को चेंज भी कर लेती हूँ, तो भी भगवान मुझे वैसे ही सिचुएशन में डालेंगे, जब तक कि मैं वो सिचुएशन में डील करना ना सीख लूं। ऐसा एक्चुअली वो ब्रायन ट्रेसी कहते हैं ना कि यू विल रिसीव अ पिंच, देन यू विल रिसीव अ स्लैप एंड देन वेट फॉर द वोल्केनो। कि अगर आप जब तक वो इमोशन को हैंडल करना नहीं सीख लोगे, तब तक वैसा ही पैटर्न आपके लाइफ में आता जाएगा। चाहे आप वो वर्किंग स्पेस को चेंज कर लो, चाहे आप वो
पर्सन को चेंज कर लो। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि कोई लोग अगर जॉब में टिक नहीं रहे हैं तो वो नहीं रहे हैं, बहुत बार वो लोग जॉब चेंज करते रहेंगे, 6 महीना भी नहीं होता है और वो लोग सोचते हैं कि ये वर्किंग स्पेस मेरे लिए सही नहीं है। और किसी किसी का जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो गए तो वो उनका बार बार ब्रेकअप होता रहता है कि नहीं 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 ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है। और किसी किसी को वो कैरियर में वो डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको एक्चुअली उसमें अपना वो इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाना होगा कि क्या है, कहीं ये वो मेरा पैटर्न तो नहीं है। अगर ये मेरा पैटर्न है तो ये सिचुएशन या ये पर्सन मुझे क्या लेसन देने के लिए आया है। अगर आप वो लेसन को समझ लोगे तो ऐसा हो सकता है कि आपसे वो सिचुएशन आप आगे से रिपीट ही ना हो। Right, Shabani. I think that recognizing the patterns, once that lesson is learned, ये क्यों आ रहा है situation again and again. Once the lesson, हाँ, then you break free from that pattern and you can go to the next step, and that situation will be dealt forever. And at this point, I'm welcoming Coach Swati Kheria. Welcome. And yeah, Coach Kamar says so authentic. And Suchitra, identifying your own patterns. Yes, thank you, Suchitra, for your lovely comment. yes. And Shabani, thank you for your insights. And Shabani, how can calm down? And intense situation, emotional situation तो लाइफ में सबको आता ही रहता है. It is not going to be कि या आज का दिन अच्छा रहेगा. Emotional situation तो हमेशा आते रहते हैं, but कैसे हम लोग quickly recognize करके उसको calm down करके shift करना है अपने को. तो can you just put light on that? Yes. In any situation, if you are feeling triggered, आपको तो पहला है कि आपको रिएक्ट नहीं करना है, Yes. रिस्पॉन्ड करना है. रिएक्ट और रिस्पॉन्ड के बीच में थोड़ा सा पॉज होता है. उस पॉज में आप क्या करोगे? यू विल बी लुकिंग योर सेल्फ एज एन ऑब्जर्वर कि मैं ही वो पर्सन हूँ जो ये इमोशन को अभी फील कर रही हूँ, और मैं अगर ऑब्जर्वर के हिसाब से देख रही हूँ तो मैं देखूंगी कि क्यों मैं ऐसा फील कर रही हूँ, इसमें मैं क्या बेस्ट है जिसको मैं रिस्पॉन्ड कर सकती हूँ. तो इसमें आपको खुद ही के बीच में थोड़ा सा गैप डालना होगा कि यू आर द एक्सपीरियंसर एंड यू आर ऑल्सो द ऑब्जर्वर. और आप जितना वो ऑब्जर्वर पॉइंट ऑफ व्यू से खुद को देखोगे, आप देखोगे कि आपको वो इमोशन इतना ज्यादा ट्रिगर नहीं कर पाएगा जितना वो पहले करते थे. चाहे वो सिचुएशन सेम भी हो, चाहे वो पीपल या प्लेस सेम भी हो. बहुत बार बहुत लोग बोलते हैं ना कि वो टॉक्सिक पर्सन तो मेरे घर में ही है, तो मैं कैसे उसको रिमूव करूं. तो चाहे वो सिचुएशन भी सेम हो, जब आप वो ऑब्जर्वर पॉइंट पे जाते हो ना, तब आप देखोगे कि आप जो रिस्पॉन्ड दोगे वो एकदम टू द पॉइंट होगा. आपको ज्यादा बोलना नहीं पड़ेगा और जो हिसाब सिचुएशन के हिसाब से सही होगा आप बस उतना ही बोलोगे. Excellent point. Again, इधर आपने emphasize किया है कि how to deal is instead of reacting, respond करना चाहिए. And वो जो भी situation होता है, and just take a pause. It's tough, but take a pause. And that pause could be anything, ना Shabani? Like for example, मैं क्या करती हूँ, जाके balcony में जाके बार breathe करती हूँ. Like if there is an argument between my husband and me, or there is a situation happening work-wise also, when I'm feeling all overwhelmed and जो भी है emotion, I go to the balcony and take 3 breaths. हाँ, मुझे भी लगता है वो पावरफुल है. कैन यू जस्ट गिव सम एग्जांपल्स, क्या कर सकते हैं हम लोग वो जो पॉज में है? तो मदर्स हु कैन, सबको अलग अलग टेक्निक यूज करते हैं. कैन यू जस्ट हाईलाइट ऑन दैट, क्या कर सकते हैं? बिल्कुल. मैं बहुत एंगल में भी एग्जांपल्स दे सकती हूँ. जैसे वर्किंग स्पेस में हुआ, अगर मैं जैसे सोशल सेक्टर में काम कर रही थी, वहां पे इतने ज्यादा लड़की काम नहीं कर रहे थे क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग वगैरह रहता है. तो वहां पे क्या होगा, सपोज मेरे स्टाफ, वो सबका नजर रहता है कि ये क्या कर रही है, बिकॉज सैलरी तो बहुत हाई होते हैं और उसके रिगार्डिंग उन्हें लगता है कि
अरे ये लड़कियां हमेशा 6 बजते ही घर जाना है बोलेंगी। ये सब क्या काम करते हैं, जहां भी जब भी जाते हैं सुंदर चेहरा दिखा के सबका मन ले लेते हैं और सब उनको ही मानने लगते हैं। हम लोग इतना काम करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपको लगता है कि क्या मैं काम नहीं कर रही हूँ? खाली अपना चेहरा दिखा के आप ऐसा इंप्रेशन जमा नहीं कर सकती हो ना। तो आपको वहां पे ट्रिगर होता है, फिर आपको लगता है कि मुझे कुछ तो रेस्पॉन्ड कर लेना चाहिए। तो पहले आप अगर रिएक्टिव मोड में रहोगे, आप इमीडिएटली कुछ ना कुछ रिएक्ट कर लोगे। क्यों? हम लोग काम नहीं कर रहे, आप क्या काम करते हो दिखाओ, ये करो, तो आपका इंप्रेशन खराब होता है। पर आप जब रेस्पॉन्डिंग मोड में रहते हो, आप उस चीज को, बहुत बार होता है कि आप बहुत चीजों को जाने देते हो। अगर आपका कोई पॉइंट नहीं है उधर कहने का, तो जाने दो। हर चीज में उसमें और एक बहुत अच्छा पंच लाइन है, नॉट माई ड्रामा, नॉट माई सर्कस, नॉट माई ड्रामा। तो उसमें आपको एक्चुअली क्या होता है कि हर चीज में आपका बोलना जरूरी नहीं होता है, पर वो सब चीज कैसे कर पाओगे जब तक आप अपना वो इमोशनल इंटेलिजेंस को हाई नहीं करोगे। Yeah. तो क्या होगा आपका आपका आप हमेशा रिएक्ट ही करते रहोगे। तो become intelligent, all of you, whoever is watching. Absolutely And with you, Shab. for us also, because I have practiced all this very well, and I have seen changes through it. Absolutely, Shabani. And your life is such a powerful example. Like you went like really low, and how like a warrior you came back. And you are a live example, like how you have to deal with your emotions, and take control, become master, recognize your emotion. वो important step है, and then Ani? हाँ, बीच बीच में कट रहा है, फिर सुनाई दे रहा Yeah, and I think it's the need of the hour for everybody, to emotional master. I would highly recommend audience that if you need a support of an emotional coach, like where you can go to talk and have a space, different tools and techniques, I would highly recommend Shrabani, no better than Shrabani, who is an emotional mastery coach for women, and who's having her personal experience and dealing with so many women from so many years, and she knows how to do her job well and get you out of any situation. So coming back, we can go on and on, Shabani, and coming back to our last one more question, please. How does working on our inner transformation impact the way we experience and interact with the world around us? Can you please tell या something? हाँ, जब भी आप खुद को अंदर से आपको शांत कर लेते हो ना, आप देखोगे कि वो बाहरी जो भी सर्कमस्टेंसेस आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रही थी, धीरे धीरे आप ना उनका पावर ले लेते हो। पहले क्या होता था, आप एंगर में कुछ भी बोलते थे तो वो लोग आपको बार बार ट्रिगर करते थे, फिर आप उसको रेस्पॉन्ड देते थे, फिर वो लोग कुछ रेस्पॉन्ड देते थे। ऐसा करके वो साइकिल कभी एंड ही Yes. नहीं होता है। तो आप जब अपने कामनेस में रहते हो, आपको पता चलता है कि कहाँ पे मुझे अवॉइड करना है सिचुएशन को, कहाँ पे बिना बोले भी बहुत बार काम हो जाता है ना। बहुत लोग बोलते हैं, पहले के जमाने में बुद्ध भी बोलते थे कि साइलेंस इज गोल्डन। एंड नेक्स्ट, आपको कहाँ पे रेस्पॉन्ड देना है, कौन से वे में रेस्पॉन्ड देना है। कभी कभी हंसी मजाक में भी आप वो बात को लाइटन अप करके बोल सकते हो। वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ऐसा नहीं होता है कि वन में सबके ऊपर अप्लाई कर दो, वैसा नहीं होता है। आपको वो पर्सन, वो सिचुएशन को हैंडल करना होता है। और इसके लिए मैं चाहती हूँ कि हर वो वुमेन, हर वो लड़की इतना पावरफुल बन जाए ना कि उनको कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर पाए। और क्योंकि हर एक वुमेन एक फैमिली का जिम्मेदार होते हैं, अगर वो सारे स्ट्रेंथन हो जाएंगे तो डेफिनेटली द फैमिली विल बी स्ट्रेंथन। और बस एक एक फैमिली अगर स्ट्रेंथन हो गया तो आवर वर्ल्ड विल बी ब्यूटीफुल। Absolutely. तो या Definitely, definitely. And Shabani, coming back to, can you please, last question, very last question about being setting boundaries, and when because I want mothers, many who don't know how to set boundaries, and because of that,
they are dealing with whatever they are dealing, emotions and whatever it comes. Can you please tell how to be a Kali and a self warrior? Can you just quickly put light on that? Ha, ha. Okay. Setting boundary is very important because it will be saving you from all of your bitterness and resentment. Hmm. Right? So आप अगर कुछ काम नहीं कर पा रहे हो, आप वहां पे ना कर सकते हो. ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा बारिश का सीजन हो गया, अरे चाय बना लो, पकोड़े भी बना लो, या फिर ऑफिस में आप काम कर रहे हो, आज थोड़ा सा काम है और 2 घंटे रुक जाओ. तो वहां पे अगर आप उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको ऐसा नहीं है कि मन मार के कैसे भी करके टू मेंटेन द पीस ऑफ द होम और द वर्किंग स्पेस आपको जबरदस्ती करना है. क्या वही आपको होता है. वहां पे, हाँ, आपको वहां पे क्लियरली बोलना है कि आई कैन नॉट डू दिस. Hmm. मेरा मेरा ये काम है, अभी मैं ये नहीं कर सकती. अगर आप नहीं कर सकते हो, डेफिनेटली यू विल बी डिसअपॉइंटिंग सम, और उनको हो सकता है कि वो थोड़ा सा अपसेट हो जाए, अरे कैसे बोल रही है. लेकिन आप जब बार बार बोलते हो तो उनको भी समझ में आता है कि आप कितना दूर तक कर सकते हो और कहाँ से आप नहीं कर सकते. और वो समझाने का जिम्मेदारी आपका ही है. आप जब तक दूसरे को नहीं बोलोगे, दूसरों के अंदर या फिर हमारे अंदर भी इतनी समझ में नहीं है कि दूसरा क्या चाहता है. Correct. अगर हमें समझना है दूसरा क्या चाहता है हमसे, हमें भी उन्हें समझाना होगा कि हम क्या चाहते हैं उनसे. Yes, and that is so important for as a mother, as a parent to understand that after all you're a human being. It's okay to say no. You cannot do everything, हाँ, and you're not supposed to do everything, right, Shabani? या करेक्ट. Be और हम लेडीज को तो बहुत सिखाया गया है ना कि हम लोग सैक्रिफाइस के पूरा देवी बन जाए, हम लोग पर वो काम नहीं करता है. पेट्रियार्कल सोसाइटी में और हम लोग का मदर्स को दिया है, ग्रैंड मदर्स एज यू हैव सेड, एंड द हाँ, सोसाइटी एक्सपेक्ट्स अस. So how you become a better parent is when you set boundaries, when you take care of your emotional health, be control of your emotional health, and then that is how it works, right, Shabani? Can you, on an ending note, yeah, what would you like to tell our audience? yeah, whoever is watching, actually I want all of you to take your control on your hand. आप ऐसा ना हो कि आप इमोशंस के कंट्रोल में आ जाओ और आपका दिन महीना साल बर्बाद हो जाए, और आप जो लाइफ को इतने अच्छे से जीना चाहते हो, आप क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हो? हैप्पीनेस. हम लोग सारे हैप्पीनेस ही एक्सपीरियंस करना चाहते हैं ना. चाहे वो क्या काम कर रहे हैं, वर्किंग स्पेस में है, चाहे हाउस वाइफ है, चाहे कोई भी एस्पेक्ट में है, हम लोग सब हैप्पीनेस ही चाहते हैं. और वो हैप्पीनेस हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं तब जब हमें समझ में आता है कि कोई भी इमोशंस हमारे लाइफ में आए, वो हमें कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस देने के लिए आते हैं. कहीं पे हमें सैडनेस होता है, कहीं पे एंगर होता है, कहीं पे हमें लगता है कि हमें दूसरा थोड़ा सा अप्रिशिएट करे, हमें लगता है कि आई एम फीलिंग नीडी, कि कोई मुझे दूसरा बताए कि आई एम सो मच वर्दी. तो कोई दूसरा बताए उससे पहले आप खुद को बताओ कि यू आर सो मच वर्दी. आपको तो भगवान ने क्रिएटर बना के छोड़ा है और किसी को नहीं बनाया है. लेडीज आर द क्रिएटर्स ऑफ दिस अर्थ, राइट. Yes. दे आर गिविंग अस द नेक्स्ट जनरेशन. पर हम लोग ही है कि हम लोग खुद को ही अनवर्दी समझने लगते हैं. तो वैसा नहीं करना है. एंड एवरी लेडीज शुड बी स्ट्रांग, इमोशनली स्ट्रांग एनफ कि उनको वो जो नेक्स्ट जनरेशन बिल्डअप कर रहे हैं वो भी उतने ही स्ट्रांग बन के आ जाए. Absolutely. Thank you so much, Shabani. I'll quickly read some new comments. So Suchi has written that is the key point. Control is the most important thing. Definitely. And Coach Kumar says she also agrees with that. That's why we are here having that light with us and always ready to spend awareness. Absolutely. And Suchitra has written a comment saying such a powerful statement. Wow, Shabani. And yes, thanks for joining the Storyful Parent, Bhargavi Arjun, life coach. Thank you so much for joining everybody. And Shabani, and yes, I highly recommend Shabani, Coach Shabani, because she is powerful, and you as a parent will parent
not even parent, I say in all aspects of your life, will have a powerful control over your emotion, mastery over your emotion. Just get the tools and techniques that is so important in today's life, and go on with your life powerfully. When you master your emotions, you can go on, deal anything that life, any mess that life throws at you. And या Shrabani, पूरा शेरनी बन जाओ यार। 2025 है, नया साल है, और ये इसको पूरा नया बिगिनिंग करो, और बाकी सारे चीज आप लर्निंग से सीख सकते हो। हमने जब तक नहीं सीखा था तब तक हमें लग रहा था व्हाई आई एम फीलिंग जेलस, व्हाई आई एम फीलिंग रिजेंटफुल, आई एम नॉट ए गुड मदर, आई एम नॉट ए गुड वाइफ, आई एम नॉट ए गुड वुमन। आपको खुद को बिल्कुल भी नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। कहाँ पे आप क्या फील कर रहे हो, इमोशंस तो वही बताने के लिए आते हैं। इमोशंस आर द सॉल्ट ऑफ लाइफ, है ना। absolutely, इमोशंस के बिना स्वाद ही नहीं आएगा लाइफ में। कुछ भी इमोशंस ना हो तो कैसे जिएंगे, कुछ भी फीलिंग्स ही नहीं होगा। तो सब कुछ फील करो, सब कुछ एक्सपीरियंस करो, पर जियो एकदम शेयरिंग जियो, वाला लाइफ। जियो खुल के, पिंजरा खोल के, जुगनी लाइक यू Shrabani. या More power and energy to all of us, definitely in 2025 and years to come, always. And that's why Shrabani and Suchita, thank you, and glad to be a part of this. थैंक यू सुचित्रा, थैंक यू। Thank you, and it really motivates us. And we, as I know, Shrabani and me, we want to see that mothers, especially who are the backbone of the family, to be powerful. Once they be powerful, imagine the way mother she will be to the parent, to her children, and the children, how they will grow as leaders when being raised by such powerful mothers who have full mastery over their emotions. And it's becoming like, the mother is a leader and chain maker leader, या and the children are leaders, and the whole world is domino effect. Okay, and such a beautiful place it will be. So mastering of the emotion is very important. And on this note, thank you, Shrabani, for taking थैंक out your time. यू, um, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल व्यूअर्स, थैंक यू, एंड विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और सारे पावरफुल बन जाओ, जीजा भाई के जैसे बन जाओ कि हमें शिवाजी बनाने हैं, yes, तभी जाके हमारा कंट्री फ्लरिश करेगा, है ना। absolutely, और खुद को हाउस वाइफ या फिर कैसे, आई एम जस्ट ए मदर, जस्ट ए हाउस वाइफ, जस्ट ए वुमन, yeah. छोड़ दो, सारे छोड़ दो। Thank you, Shrabani, and या up with you again soon. And thank you everybody, thank you for being a wonderful audience and supporting us, and have a wonderful and powerful 2025, all of you. Love you. थैंक यू, लव यू ऑल, बाय।